अगर उस पे पूरा आंसर भी नहीं लिखते हो आप, तो भी आप उसका क्रक्स आपको पता होना चाहिए with respect to the demand of the question and demand of the answer. In GS2, I think sir, mostly flow charts work very well, क्योंकि diagrams का scope actually बहुत कम रहता है. But Emblems Act 1950 says it is with respect to anything, be it politics, be it your business, be it your company, be it your anything. You cannot keep a name India. फ्लो चार्ट जैसे कि अभी देखो स्क्रीन पे जो डायग्राम है, तो दैट इज अ फ्लो चार्ट व्हिच कैन बी यूज्ड इन एनी क्वेश्चंस कि आपको कहीं के कॉजेस दिखाने हैं. सबसे पहले बता दें, अगर आप सरदार पटेल स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें 3 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. पहला प्रोग्राम उन्नयन है, जिसमें प्री से लेकर मेंस तक आपकी तैयारी कराई जाएगी, उन्नयन प्रोग्राम. दूसरा प्रोग्राम है राइस, जिसमें मेंस की प्रिपरेशन कराई जाती है. और तीसरा प्रोग्राम है RIPP, इसमें आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी. और ये सभी प्रोग्राम पूरी तरह से फ्री हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये डिटेल भेजनी होगी. हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, now I welcome you to the session of this answer writing discussion and how to deal with the particular subjects, be it GS2, GS4, GS1 or essays also. So now in this session we are taking the GS2 syllabus. That will be topic wise. So I would like to ask some doubts if any of the participants have, so that we can discuss doubt this topic wise, or else we will take the paper as a whole. So anyone having any doubt? सर GS2 में मैंने ग्रुप पे डाला था कि कंटेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है तो फिर उसमें डायग्राम्स वगैरह बनाने का स्कोप बहुत कम रहता है GS2 में स्पेशली. So one was that कि GS2 में you are very much right कि GS2 में जो है डायग्राम का स्कोप जो है काफी कम है. एंड कंटेंट वाइज सर कंटेंट वाइज तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ऑप्शनल भी है पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है. So Ranveer and Aiman, they are our mentors. Friends, I would like to tell that we have specific mentors for each and every subject and essay and optional. So in this respect, with respect to GS2 paper, Ranveer and Aiman are supporting us as a mentor for GS2 and so I would request Aiman and Ranveer to say about this query. What you would like? So ये सही बात है कि it is not possible in every answer to have a diagram, especially in GS2. But क्योंकि योगेश ने जैसे कहा that he is from political science option and he has a good amount of content in it. Sir, एक question है मेरे सामने GS2 का, which is constitutional morality is rooted in constitution itself and is founded on the essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. तो इस क्वेश्चन में जैसे डायग्राम का स्कोप बहुत कम है, बट स्टिल अगर योगेश को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे काम करना है तो ही कैन मेक अ सर्कल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड in different dimensions he can write certain points of what constitutional morality stands. This can be done, or in some cases like relevant judicial decisions. तो एक timeline you can make about judicial decisions. अगर आपको बहुत अच्छे से judicial decisions याद हैं, you can make a timeline. In a lot of places you have this scope of making a timeline of judicial decisions. So that way you can put in some diagrams and some sort of presentation in case of GS2. The doctrine, some evolution through judicial features. So I think this can be one way of adding diagrams in GS2 answers. In GS2, I think sir mostly flow charts work very well, क्योंकि डायग्राम्स का स्कोप एक्चुअली बहुत कम रहता है, बट हर क्वेश्चन में स्कोप होता है कि आप फ्लो चार्ट बना दो कोई, या फिर विशियस साइकिल्स जो पॉवर्टी हंगर के क्वेश्चन है वहां पे उनका स्कोप होता है कि एक साइकिल दिखा दो. So in this aspect, आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल एज राजश्री सेड अबाउट द पॉवर्टी, so you write reason 1, okay, 1, 2, 3, so all this will be what
like poor nutrition, poor education, jobless, low livelihood, and then you say 4, and then again. So you see, so if you again go back to the same cycle, so this will be intergenerational poverty. Getting the point? Intergenerational poverty in the sense कि वो आदमी गरीब है तो उसका बच्चा भी गरीब ही रहेगा क्योंकि वो इस साइकिल से बाहर नहीं आ पाया. But in another diagram or in the same diagram, if you put a stop here and you say income oblique livelihood as a solution, then you will be able to take that person out of this cycle. तो दिस एक ऐसा साइकिल बनाकर और थोड़ा इसमें आप बता दें कि दिस इज द स्टॉपेज, दिस इज हाउ वी ब्रेक द साइकिल बाय प्रोवाइडिंग हिम अ income base or a livelihood so that he can get out of this cycle. Okay, हाँ योगेश कुछ बोल रहे थे? सर मैंने एक पीडीएफ शेयर की है ग्रुप पे, वो एक जनरल फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के लिए है, वो भी एस्पिरेंट्स देख सकते हैं, उनको हेल्प करेगा. Okay, I'll open it. Yes, very good. So yes, Aiman, explain one or two diagrams. सर लाइक ये जो वेट वाला डायग्राम है ये मैंने बहुत यूज किया है, जो फर्स्ट कॉलम में है. इसमें आप प्रोज एंड कॉन्स के लिए आप ये डायग्राम यूज कर सकते हो, जस्ट इन केस जैसे आरटीई पे क्वेश्चन आया है तो यू कैन मेक सच अ डायग्राम. और एक एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी वाला डायग्राम्स होते हैं जिसमें आप लेट्स से हंगर के केस में है तो उसमें आप ये ट्रायंगल वाला डायग्राम यूज कर सकते हो. फैक्टर्स अफेक्टिंग समथिंग जिसमें आप जो सेकंड डायग्राम Okay. So factors so affecting something affected by something, so you can make this circular diagram that's there. yes. So So a this lot is of very it can good be thing. used. These diagrams you can use in the GS4 paper also. GS4 and GS3, sir. Yes, GS4 also and GS3, GS2. So these are very useful thing which you can use in any paper. Of course, जो GS1 है that is of more of geography and history, तो उसमें तो हमें specific diagrams use करने ही है. But yes, GS2 and GS3 4 में. Okay. सर मैं पूछ रहा था राजश्री मैम से कि आप फ्लो चार्ट बोल रहे थे, तो वो पॉलिटी के किसी क्वेश्चन के आप एग्जांपल दे सकते हैं? पॉलिटी के क्वेश्चन में तो देखो क्वेश्चन हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं. फ्लो चार्ट जैसे कि अभी देखो स्क्रीन पे जो डायग्राम है तो दैट इज अ फ्लो चार्ट व्हिच कैन बी यूज्ड इन एनी क्वेश्चंस कि आपको कहीं के कॉजेस दिखाने हैं तो कॉजेस लिख दो और एरोज निकाल दो, 4-5 एरोज निकाल दो, कॉजेस लिख दो. अगर आप बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज में भी देखेंगे तो सेम दिखेगा आपको. Yes. So Yogesh पूछ रहे थे कि what about some example with respect to flow chart in this GS2. So there was a question on this article 112. What are the budget and what are the components of the budget? ठीक है, and how do you differentiate between? So you start with this article 112 और फिर उसमें then you write capital, revenue, and the capital के what are the capital के जो भी आपके हाँ जो इस पता तरह है, से ठीक है, and then revenue, salary, subsidy, pension. Okay. So okay, before that you can divide this into this also. Before this, you can divide this into receipt and expenditure, receipt and expenditure. तो कैपिटल रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाउ. अब ये देखो, अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसे ये बढ़ता जाएगा. सो यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ, तो ये तो आपको बेसिक्स आपको पता ही है. सैलरी, सब्सिडी, पेंशन एक्सेट्रा. तो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल. लाइकवाइज आपको
ठीक है, 7 to 10 जो क्वेश्चन है विच यू अटेंड इन लास्ट 10 मिनट्स, व्हाट डू यू डू? 11 to 20 पहले अटेम्प्ट करते हैं एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10, और अदरवाइज 1 to 5 पहले अटेम्प्ट करते हैं, 11 to 20 बाद में अटेम्प्ट करते हैं, एंड 6 to 10 बाद में अटेम्प्ट करते हैं. So anyhow 6 to 10 will be the last only. So 6 to 10 वाले जो क्वेश्चंस हैं, there you can use these diagrams. Getting the point, Yogesh? Okay, sir. Awesome. Okay. So ये भी है, ये देखो at the end of the day this is very clear that GS2 के पेपर्स में डायग्राम पे ज्यादा स्कोप है नहीं. So that scope on you can generate that scope only by practicing. Okay, let's pick some question. Sir, in this particular PDF, there is one diagram which is related to GS2 on local self-government. If you scroll it down. Sir, I think it's in page 4 or 5. Okay. So this one, the LSG huh? funds, functions and Okay. functionaries issue. So you can create such diagrams for certain topics. Okay, जैसे अभी आप इसमें से देख लीजिएगा, this is for the information of everyone, that please go through this PDF and take out these very well established diagram like this ना. देखो पेपर क्वेश्चन तो आएगा ही with respect to 73rd, with respect to PRI bodies, with respect to all these things. तो वो ऐसे ही, because this is a part of syllabus और हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो this is a well established diagram. अब इसमें आप इसको पिक करके आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से, that is up to you. ठीक है, लेकिन बेस टेम्पलेट यही रहेगा, that is the heading of this PDF itself. तो बेस टेम्पलेट यही रहेगा, आप यहाँ से पिक कर लीजिए. सर GS2 में जहाँ पे कोई भी स्टेटिस्टिक्स दिखाने होते हैं ना, वहाँ पे एक पाई चार्ट या फिर बार डायग्राम बहुत अच्छा काम करता है कि सुप्रीम कोर्ट सपोज वैकेंसीज दिखानी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर पेंडेंसी दिखानी है कोर्ट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बार डायग्राम बना दो और वहाँ पे मेंशन कर दो, तो बहुत इफेक्टिव वे लगता है. तो पाई चार्ट एंड बार डायग्राम दोनों भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. कि जैसे या फिर ग्राफ दिखा दो कि पॉवर्टी का ग्राफ दिखाना है कि सपोज 2001 में इतनी थी, 2022 में इतनी है, तो एक ग्राफ दिखा दो जहाँ पे से डाउनवर्ड्स आ रही है पॉवर्टी. So let's start with the 1950. Okay. Yes. And today is 2021, census wise, or 23. So 23 is the latest. You might not have data about that. So you write 20 or 21, whatever you like. So उस time पे poverty around 50% of the population or more than that was. So this you write population. जी. And इसमें क्या होता है ना कि इसका yes. इसमें अगर डेटा भी ना हो ना आपके पास, तो डायग्राम के थ्रू यू कैन जस्ट शो कि रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है. हाँ, yes, exactly. बस And about the diagram, since we are discussing, so obviously आपको जो labeling है, which I was discussing in the first session itself, labeling आपकी बहुत proper होनी चाहिए. You might be you can provide a little data, but labeling should be proper. See, graph है तो उसका x axis और y axis you have to be very clear. लिखना है x axis में क्या है, y में क्या है. And since it is a diagram, it has to be enclosed in a proper box. And then you below this you write figure declining poverty levels. ठीक है, थोड़ा सुंदर बनाना है पेपर. वो criminalization of politics का भी दिखा सकते हैं. Yes, sir, exactly. I was about to say this, that the same thing can be used about the criminalization of politics, or how number of debates have decreased in the parliament. So once you have these statistics, you can convert them into these graphs. Yes, exactly. और अभी प्रैक्टिस करने से ही वो आएगा कि किसमें ग्राफ बना दें, किसमें पाई चार्ट बना दें, किसमें ये बार ग्राफ बना दें. वहां पर बैठेंगे अचानक से वो सोचेंगे तो नहीं, तो अच्छे से डायग्राम बन भी नहीं पाएगा और टाइम वेस्ट भी हो जाएगा उस डायग्राम को बनाने में. तो प्रैक्टिस कीजिए. टारगेट एटलीस्ट यही रखिए कि 20 क्वेश्चन है, उसका 20% भी लेकर चले तो 4-5 क्वेश्चन में डायग्राम बन जाएंगे.
सो दैट पेपर जो थ्रू आउट है जो वो मोनोटोनस ना लगे। बस इतना तो टारगेट रख सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन में तो मैं बना ही दूं डायग्राम। सो लेट्स पिक 1 or 2 क्वेश्चन जिसमें हम डायग्राम बना सकते हैं। Okay. For example, this question number 10. Examine the scope of fundamental rights in the light of latest judgment of Supreme Court on right to privacy 2017 का क्वेश्चन है ये। Scope of fundamental rights. तो इसमें हब एंड स्पोक वाला डायग्राम बन सकता है, where you write article this fundamental rights in the because it is with respect to privacy. So in the center of the diagram will be Article 21, and then you raise the spokes to it, और सभी spokes में you write the whatever scope it could be. So scope of Article 21 किस किस में आएगा? In everything, be it a health, be it education, be it आपका रेजिडेंस और बी इट एनीथिंग, तो उसमें आप इसको स्पोक्स बना के उसका स्कोप दिखा सकते हैं। सो दीज आर 2 वर्ड्स, डोंट गेट कंफ्यूज। तो इसमें एक डायग्राम यूज कर सकते हैं। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे डिपेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो यही है, इसने खुद ही बता दिया कि देयर आर मेनी एडजेक्टिव्स अटैच्ड टू द वर्ड प्रीएम्बल। तो उसका आप अपने डायग्राम से दिखा दीजिए। India is a socialist, secular, sovereign, democratic republic. So these are the 4 adjectives attached to it, और 4 adjectives का आप उसका स्क्वायर का डायग्राम या रेक्टेंगल का डायग्राम बनाकर then you write. So discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for in the article principles in the directive principles of state policy. So this इसमें भी काफी स्कोप है। डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स, तो फैक्टर्स का बना के 1 वर्ड के आप उसमें डायग्राम बनाकर उसको लिख सकते हैं, दीज आर द फैक्टर, एंड देन यू एक्सप्लेन दोस फैक्टर्स लेटर ऑन। सर इस पॉलिटी में सेपरेशन ऑफ पावर वाले टॉपिक में इफ वी सी द 5th क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर वाले टॉपिक में separation of power, fifth topic. Okay, fifth go ahead. question, it is asking discuss the desirability of representation of women in higher judiciary. So we can make a pie chart just where we show that in out of these many judges, only these many judges are female. So you can show how badly women are represented in the higher judiciary. You can make use of pie charts here. So this will be male judges, female judges. As simple as it is. और यू कैन यहाँ से ऐसे लेवल करके बाहर से, तो फाइन। सर Yes. हिमांशु भैया, सर अगर Yes, हम yes. आईआर वाले टॉपिक्स में जाएंगे तो वहां पर तो हमेशा स्कोप मिलता ही है और हर साल Yes, 2 या 3 exactly. आईआर से आते ही है। फॉर एग्जांपल ये इसमें एक चाइना वाला था, डोमिनेंस ऑफ चाइना वाला, जो लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आया। नंबर आईआर में होगा सर फर्स्ट सेकंड नंबर वाला। ओके, सो फर्स्ट इज बिमस्टेक। सर बीमस्टेक में भी बन सकता है। ये I2U2 वाला जो मैंने अटेम्प्ट किया था पिछले साल मेंस में, तो इसमें मैंने सर इंडिया, इजराइल और यूएसए और यूएई का जो मैप था उसको शो कर दिया, और आसपास में जो एनर्जी सिक्योरिटी वाले जो पॉइंट्स थे, अफ्रीका से कनेक्टिविटी था, उन सबको हाईलाइट कर दिया। तो उसमें सर वैल्यू एडिशन हो जाता है। ओके, गुड। हाँ, सी अगेन, this is a very good thing. Just to continue the point of Himanshu. तो अब ये जैसे IR इज ए बिग फैक्टर, उसमें वर्ल्ड का डायग्राम बनाना, एंड देन अभी जैसे चारों को अगर 4 कंट्री को शो करना, तो इसका मतलब ये तो नहीं सिर्फ 4 कंट्री बना दी है टू मेक द वर्ल्ड मैप। तो दिस शुड बी वेरी हैंडी टू यू। अभी से प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट विल बी यूजफुल टू यू इन ज्योग्राफी ऑल्सो। ठीक है, आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा ये मैप जो है, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या ओशन करंट्स हैं, और क्या है ज्योग्राफी में जिसमें ये डायग्राम काम आता है।
डेजर्ट्स वगैरह। एयर मासेस हैं और GS1 में तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन होता है जहाँ पे आप डायग्राम डाल सकते हो, कितना भी छोटा सा डायग्राम डालो वो अप्रिशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल ना टायर 2 सिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो मैंने ऐसा तीन बॉक्सेस बना दिए एक के ऊपर एक, और टायर 2 1 2 3 लिख के एक एक एग्जांपल लिख दिए उन बॉक्सेस में, उन सिटीज की। सपोज टायर 1 दिल्ली, टायर 2 की एक सिटी और 3 की। तो आई मेड दिस डायग्राम एंड मेड अ बॉक्स अराउंड इट। So such diagrams also work and they are appreciated, I feel. Yes, exactly. So that is the point कि आपको हाथ में बहुत ही क्विक होना चाहिए. It should take around कितना है इसको 5 सेकंड 5 to 10 seconds में इतना क्विक होना चाहिए कि आपको डायग्राम आ जाए. And then about the question India, US, Israel and चौथा क्या था? UAE sir. India, Israel, UAE and US. So UAE, Israel, about that. And what was the US and then India. So आज जैसे हिमांशु ने बताया, so we would say कि इन सभी का अफ्रीका से एसोसिएशन, राइट हिमांशु? Yes sir. एंड ओके. सर एंड एक और जो चाइना की जो जियो पॉलिटिकल डोमिनेंस है जिबूती में, इथियोपिया में और सूडान में, उसको काउंटर यस करने के लिए. राइट. उसके बाद सो यहाँ पे एनर्जी आप सिक्योरिटी इथोपिया, के लिए, जिबूती. हाँ, ट्रेड चैनल ये सिक्योर करने के लिए, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. यस एग्जैक्टली गुड. ठीक है. और फिर आप यहाँ पे इंडो पैसिफिक, तो इट इज ऑलवेज देयर. तो इंडो Yes, sir. पैसिफिक को तो हाईलाइट करके आप लिख ही दीजिए. एंड सर अगर डायग्राम की जरूरत नहीं भी हो तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस के या डिप्लोमेसी के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें आजकल जो टर्म्स है जियो पॉलिटिक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर हम डायग्राम बना के जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाएंगे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट भी हो सकता है. यस. जैसे कि 2 साल पहले क्वेश्चन आया था चाइना का, जो यूएस का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था कुछ. सर 2021 में क्वेश्चन था. द यूएसए इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना, मच मोर चैलेंजिंग देन अर्सवाइल सोवियत यूनियन. तो सर उसमें चाइना का मैप बना के उसके जो सारे डिस्प्यूट्स है आसपास की कंट्री के साथ. यस. सो आईआर पे तो आप समझ ही जाएंगे बहुत जल्दी कि कैसे डायग्राम बनाना है, कौन सा बनाना है. ओनली थिंग इज दैट कि आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें. फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द टू? तो सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बताना है तो थ्रू द डायग्राम. अब देखिए डायग्राम को इतना भी वो नहीं कर देना है कि आप सब कुछ ही पूरा आंसर ही आप डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें. इतना भी मत करना क्योंकि फिर देन डायग्राम विल बी मीनिंगलेस. सो विद रेस्पेक्ट टू बिम्स्टेक एंड सार्क आई वुड से दैट व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टू? one is based on geo economics and one is based on geopolitics. तो आप डायग्राम में दिखाकर दिस पोर्शन, इसको आप सिर्फ इतना ही दो मेन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आफ्टर शोइंग द कंट्रीज, उसके बाद में आप उसके दो मेन पोर्शन वही दिखाना है आपको कि ये दिस एरिया विल बी ऑलमोस्ट, दिस एरिया विल बी सार्क, मतलब आपके वेस्ट साइड में सार्क आएगा एंड देन जियो पॉलिटिक्स एंड ईस्टर्न पोर्शन विल बी बिम्स्टेक, जियो इकोनॉमिक्स. बस प्लेन डायग्राम रखना है ताकि मीनिंगफुल रहे. Otherwise, there are lot many points which should not be shown through the diagram itself. Otherwise, diagram meaningless हो जाए. Okay. So I hope you have got the essence of the talking which we are doing with respect to diagram. अच्छा, कुछ इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे तो क्वेश्चन हमेशा ही आता है. उसमें तो डायग्राम बनाना ही बनाना है एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग.
सभी जानते हैं, सिर्फ इसमें से पीछे बैकवर्ड लिंकेज होता है, एंड देन बीच में सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, एंड देन फॉरवर्ड लिंकेज। तो ये फ्लो में आप डायग्राम बनाइए, सर्कल में बनाइए, आप पे है, एंड देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सप्लाई चेन में क्या क्या चाहिए होगा, लॉजिस्टिक्स चाहिए आपको, बैकवर्ड लिंकेज में क्या क्या चाहिए, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फार्म इंश्योरेंस, या फिर फार्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन में क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। फॉरवर्ड लिंकेज में क्या चाहिए, वी शुड हैव सम मेगा फूड पार्क्स ना। ये सारा का सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, मेगा फूड पार्क्स में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और प्राइम मिनिस्टर स्कीम ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज, फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड एंटरप्राइज, समथिंग लाइक दैट। ये इसमें आप तो फूड प्रोसेसिंग का तो आप बहुत अच्छे से डायग्राम तैयार कर ही लीजिए, हर बार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आता ही है। अच्छा, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ GS3, बट यस अभी मेरे से गलती हुई है, दैट GS3 का क्वेश्चन मैंने GS2 में डिस्कस किया, बट यस मैं ये जरूर कहूंगा कि ये गलती नहीं है। मे बी किसी एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा चेंज हो जाए और वो इसको GS2 का क्वेश्चन बना दे। डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी? व्हाट डू यू थिंक, जीए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को क्या डायमेंशन है जिसकी वजह से वो GS2 का क्वेश्चन बन सकता है? क्योंकि ऐसा हुआ है 21, 22 और 20 एग्जाम में ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस पेपर में स्विच कर गए हैं, एंड यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, आपको आंसर लिखना ही है। ओके देन, और बताइए योगेश, आप और क्या डिस्कस करना चाहेंगे, और वी गो टू एनी अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस which may not include diagram, कोई conceptual discussion? सर ये जो UDHR वाले जो आर्टिकल्स हैं सर, वो याद करने का कुछ फायदा है क्या? वो अरे मतलब नहीं, यूज कर, मतलब क्या कुछ लगता है UDHR में क्या आर्टिकल्स हैं? मतलब अगर कंक्लूजन वगैरह में लिखना हो कुछ, तो मतलब आर्टिकल 1 फ्री एंड इक्वल ह्यूमन बींग्स वगैरह इन सब की बात करता है, तो मतलब कुछ, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर, मैंने याद नहीं किया। भाई UDHR इज सच अ वास्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो उसमें याद मत करो एवरीथिंग इज अ ह्यूमन राइट UDHR, जस्ट मेक अ मेंशन ऑफ इट, UDHR everything is a human right in that is the base document। आप उससे उठाकर आप देखिए, अलग अलग कंट्रीज दे टेक signals from that document and they make fundamental rights out of those human rights। अब ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि what are the fundamental rights and what are the human rights, and how far India has been Indian democracy has been able to, or Indian constitution has been able to bring as much as possible human rights towards the basket of fundamental rights। तो आप इसमें क्या डायग्राम, अच्छा चलो लेट्स डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें क्या डायग्राम बनाओगे फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में? सर मेंटर्स, वेन डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, क्या क्या कॉमन है, कौन कौन से राइट्स दोनों में इंक्लूडेड है। सर मैं बोल रहा था कि वेन डायग्राम बना सकते हैं। मेंटर्स प्लीज। योगेश डेफिनेटली वेन डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट में अगर हम एक तरफ फंडामेंटल राइट्स लिखे और एक तरफ ह्यूमन राइट्स लिखे, और फिर उन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी उसको बता दे और साइड साइड में जो डिफरेंसेस है उनको बता दे, तो 3 पार्ट होंगे और आप स्पेस भी अच्छी कवर करोगे और ज्यादा डायमेंशन भी कवर हो सकते हैं उसमें।
यस आई वाज सेइंग कि जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर जो स्पेस होता है सर्कल का वो कम होता है। उसकी बजाय अगर हम एक तरफ फंडामेंटल राइट लिखे, एक तरफ ह्यूमन राइट्स लिखे और दोनों के जो डिफरेंसेस है वो साइड साइड में लिखे और दोनों के जो कॉमन पॉइंट है तो एरो बना के बीच में एक बॉक्स बना के उसके अंदर जो कॉमन पॉइंट्स है वो लिखे, तो इसका प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा होता है। आप स्पेस अच्छी कवर करते हो और जो पॉइंट ऑफ द डिस्कशन है वो यही है कि आप प्रेजेंटेशन अच्छा करके आप अपने मार्क्स भी इंप्रूव कर सकते हो और टाइम भी बचा सकते हो, क्योंकि इस सर्कल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यस, ओके। तो आप UDHR इज, तो उसमें से आप सिर्फ उसका मेंशन करके कुछ भी लिख लीजिए। और और सर Ranveer, would you like अगर to हम take forward the discussion? रणवीर नहीं है। हाँ हिमांशु, आप कुछ कह रहे थे। सर वो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था कि डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट्स में। तो जब भी अगर ह्यूमन राइट की बात आती है तो हम आर्टिकल 21 को कोट करके और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वेरियस, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन वाला, प्राइवेसी वाला, तो अगर हम UDHR 21 और सुप्रीम कोर्ट को ही कोट करें तो हम बहुत ज्यादा डायमेंशन कवर कर सकते हैं स्पेसिफिक आर्टिकल कोट करने की बजाय UDHR के। यस, सर मुझे एक मेंशन करना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ टाइम की वजह से हम करंट अफेयर्स बहुत निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन GS2 का पेपर बहुत ज्यादा हेवीली लोडेड होता है विद करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। कोई भी नया बिल आया जैसे कि राइट टू हेल्थ बहुत ज्यादा न्यूज में, तो हाई चांसेस UCC राइट टू बिल, राइट टू हेल्थ सॉरी, ये सब आने के बहुत चांसेस है। यस सर, तो अगर मेंस 365 अब करो क्योंकि उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह भी दिए हुए हैं अच्छे से, एंड इवन डेटा भी दिया हुआ है। तो एंड उसमें जो टॉपिक्स है स्पेशली पॉलिटी के, बाकी सब्जेक्ट्स तो यू कैन पिक एंड चूज, बट पॉलिटी के जो मेंस 365 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यस डेफिनेटली। तो करंट यस, अफेयर्स तो आपको पिछले 2-3 सालों में सर डायरेक्ट क्वेश्चंस है, जैसे कि विमेन इन जुडिशरी, वो टॉपिक चल ही रहा था, एंड मई जून जुलाई ये 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स। यस, अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्वेश्चन जो चल रहा है डिस्कशन, यू कैन सी दैट देयर वाज ऑलरेडी अ क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मे बी शायद 2015 और सो यू विल हैव टू अगेन प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। एंड अभी देख लीजिए इसमें आप लॉ कमीशन 2018 में क्या कहा था अभी, और अभी रिसेंट लॉ कमीशन क्या कह रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू विल हैव टू कंपेयर। एंड ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू कीप 3 थिंग्स रेडी। एक तो आर्टिकल्स, दूसरा एनी कमीशन और कमिटी जो उस टॉपिक पे बैठी गई है, एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोई भी एक, क्योंकि एक तो UCC पे 2-3 जजमेंट्स है, सेम सेक्स मैरिज पे 2-3 अगर हो जाए, होमोसेक्सुअलिटी तो एक ही कोई नवजीत सिंह जौहर रख लिए, तो वो आप मतलब ऐसे प्रिपेयर करें, क्योंकि होता है कि GS2 नहीं आता है, तो हर टॉपिक के लिए एक एक कमिटी, एक एक जजमेंट ये रेडी रखिए, बिकॉज दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। Yes. Sir, in fact, last year though we have seen that UPSC has started asking ki explain it with the case laws. Yes. So now it is no more a value addition. Now it is the requirement of the question these days that we should have the case laws with us. Yes, exactly. And I am also expecting a question with respect to executive versus judiciary, क्योंकि अभी काफी जुडिशरी का इश्यू आ रहा है इन द फ्रंट लाइट से, जब से चंद्रचूड़ जो है वो CJI बने हैं, सो ही इज वेरी वोकल अबाउट द रोल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो जुडिशरी को कितना पावर है, एग्जीक्यूटिव्स को क्या पावर है, एंड इवन आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से ही इज आस्किंग ही इज ऑन जजेस
to restrain themselves from entering into the field of executives. One thing that, and the second thing, मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ है, that is, what do you think? Is it an error of judicial activism, which is called as judicial adventurism? Yes, sir. Judicial activism पे मतलब we can expect this question. एंड वहाँ पे कंटेंट भी बहुत अच्छा है लिखने के लिए, और मणिपुर का जो केस है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट बनता है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज इट इन, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन है, वी कैन यूज दैट केस एग्जांपल इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, उसके वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में ज्यादा बोला जा रहा है। और वहाँ पे डायग्राम्स का भी बहुत अच्छा स्कोप है कि आप एक कॉन्सेंट्रिक 3 सर्कल्स दिखा दो कि जुडिशियल एक्टिविज्म, ओवररीच एंड एडवेंचरिज्म दिखा के 3 concentric circles दिखा दो, तो your answer is done there. I mean value addition के हिसाब से. Yes, right. So ये जो probable questions होते हैं, which they come out of recent current affair news only. So try to have knowledge on that. अगर उस पे पूरा आंसर भी नहीं लिखते हो आप, तो भी आप उसका क्रक्स आपको पता होना चाहिए with respect to the demand of the question and demand of the answer, which includes, जैसे अभी राजश्री ने बताया, that what article in the constitution it refers to, one, and to at least have some nearby proper language of that article. बहुत ही ज्यादा फट्टेबाजी नहीं मारनी है कि ये आर्टिकल ऐसे कहता है. Second thing about the case laws, about near to that judgment or near to that article and near to that topic. इतना आप लिख पाएंगे, then तो क्वेश्चन तो आप हैंडल कर ही लेंगे. So these things give substance to your answer. And also sir, one thing I want to mention is कि कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो the way you write that answer depends on the paper कौन सा है. सपोज मणिपुर वायलेंस है तो GS2 में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल या गवर्नेंस के हिसाब से पूछा जाएगा. GS1 में सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इस हिसाब से पूछा जाएगा. तो फिर आपका अगर आपका आंसर प्रिपेयर्ड है, देन यू शुड बी रेडी टू चेंज द हाउ यू राइट इट और हाउ यू स्ट्रक्चर इट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. और GS3 में डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म के केस में भी मणिपुर का अलग कॉन्टेक्स्ट आ जाता है. हाँ, इस पर एक्चुअली जो सिक्योरिटी का क्वेश्चन है वो बॉर्डर मैनेजमेंट पे या फिर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ज्यादा रिवॉल्व करने के चांसेस है, बिकॉज पिछले साल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आ चुका है क्वेश्चन, साइबर पे आ चुका है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे भी आ चुका है. तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये टॉपिक्स अवॉइड होंगे. देन बचा जो है वो है नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी स्पेशली और बॉर्डर मैनेजमेंट पे पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो इस साल आएगा. एंड मोस्टली म्यांमार इज द पॉसिबिलिटी. Yes, So it can also become a case study for GS4. Yes. Good. So you know the incident, everybody knows the incident, so वो GS4 में आ जाएगा. See, obviously, because see 2012 में क्या हुआ, and now we are 11 years past 2012, still no change in morality level of the public, moral compass जिसको हम कहते हैं. तो जब आप इस इंसिडेंट की बात करें इन GS4 2023 में जो हो रहा है, you go back to previous incidents कि over the time same incidents कैसे रिपीट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, स्कूल एजुकेशन में या फैमिली वैल्यूज में या फिर पॉलिटिकल वैल्यूज में. पॉलिटिकल वैल्यूज भी होती हैं ऑब्वियसली. पॉलिटिकल वैल्यूज हैं वो जो डिसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं वो, और दे आर यूजिंग द पब्लिक फॉर देयर वोट बैंक, दैट यू कैन आल्सो राइट. सो दिस इज अ वेरी गुड सजेशन दैट ये GS4 में भी आ सकता है. एंड केस स्टडीज जो है ना, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में जो सब चलता है ना, लोकल जो न्यूज होते हैं उनपे भी केस स्टडीज बनते हैं. जैसे कि अभी एक द्वारका का केस बहुत फेमस हुआ है चाइल्ड लेबर का, तो ऐसे जो केसेस है जो एक मतलब एथिकल कुछ उसमें इशू होता है और वो न्यूज में बहुत होता है, तो इट इज हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसे केस स्टडीज में आ जाए ये क्वेश्चन.
Okay, so you mean to say GS4? Okay, yeah, that is fine. See, how do you convert your content, whatever content you have, from GS2 to GS4 and GS4 to GS2? तो आपके पास में वही केस स्टडी है on child labor. So it will be directly asked in GS4. But अगर child labor वहां नहीं आया, then you put it in GS2. वहां पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि केस स्टडी का जो मैसेज जो होता है दैट इज यूनिवर्सल. अब उसको थोड़ी पता केस स्टडी को कि मैं GS2 में जाऊं या GS4 में, मैसेज तो उसका वही रहेगा. So, but that depends on your wisdom, how to put it in GS2 and how to put it in GS4. Yes, about one more question. Disqualification. आपको पता है राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है of MP and MLA. So this is a very interesting thing, disqualification. So just a overview, disqualification are done in two ways. One is through ECI by president, and one is through speaker, public chairman. मैंने पिछले 5 एग्जाम में ये देखा है GS2 के पेपर में that there are some static question as well, 2-3, in which you have to just write the plain language of the constitution. Static question आता है. So in that aspect, disqualification में static, you have to read the article. I'm not aware of this article number, but you have to read the article number, and this is I think 105 and 194. तो ये आर्टिकल नंबर लिख के यू हैव टू राइट दी लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल, एंड देन ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं. नाउ ये जो ECI जो डिस्क्वालिफिकेशन रिकमेंड करता है टू द प्रेसिडेंट एंड दिस इज बाइंडिंग, इसमें भी एक केस लॉ है. क्या है वो? एनीबॉडी? दिल्ली MLAs holding the office of profit. ये केस लो पढ़ लीजिएगा, दिल्ली MLAs का होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो ECI ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए. बट वेरी इंटरेस्टिंग इज दिस वन, स्पीकर एंड चेयरमैन वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं. तो इसमें भी इंटरेस्टिंग केस लॉज हैं काफी सारे. और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? देयर शुड बी सम इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू डिसाइड these cases of disqualification. Very simple, क्योंकि speaker is biased and partitional. So these are the case laws of Kisam Megachandra का case है ये. So these are the things which you should mention specifically in your answer without wasting any time. तो ये इस बार का आप अच्छे से याद कर लीजिए. अच्छा, सेकंड थिंग, डिले or no delay. What was the Lily Thomas case? Highly often, very often quoted case, Lily Thomas. कन्विक्शन के तुरंत बाद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. Yes, exactly. और इससे पहले क्या था? 3 month था. Yes. So they would give you a time of 3 months to appeal. Now see, do you see the effect of these changes on the health of democracy? जहां पर आपको the speaker, see the role of speaker, party wise, partitional है और नॉन पार्टिशनल है. तो जहां पर पार्टिशनल है, खुद के पार्टी के हैं, तो वो कोई एक्शन ही नहीं लेगा उन पे डिस्क्वालिफिकेशन पे. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, राजस्थान, कोट दीज एग्जांपल्स. महाराष्ट्र, राजस्थान में 6 BSP MLAs हैं, उनका केस 5 साल से चल रहा है. नोबडी इज टेकिंग
एक्शन, तो वहां पे एक्शन ही नहीं लेंगे, सो ह्यूज डिले। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दीजिए। बट जहाँ अच्छा, नॉन पार्टिशनल इन दैट सेंस कि यहाँ पे नॉन पार्टिशनल तो वो स्पीकर होते ही नहीं है, दे आर ऑलवेज पार्टिशनल काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें कोई एग्जांपल बनेगा नहीं दैट स्पीकर इज डूइंग अ नॉन पार्टिशनल थिंग। सो जब दूसरे अपोजिशन वाले को वो बर्खास्त कर देते हैं विद इन नो टाइम, सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पार्टिशनल ओनली। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पार्टिशनल। तो वो जस्ट एक जजमेंट आया एंड द नेक्स्ट डे ही वाज डिस्क्वालिफाइड, ही वाज इशूड अ नोटिफिकेशन। तो इसमें एक फर्क पड़ता है क्या इन द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी पे? यू हैव टू थिंक वाइड कि आप जब खुद वालों को नहीं कर रहे हो और अपोजिशन को फटाक से कर दे रहे हो, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, इट हैज गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। अपोजिशन इन इटसेल्फ इज ए institution. Use these words. The opposition in itself is a institution. Opposition is not only a person or only a party कि जिनको बस साइड वाली बेंचेस पे बिठा दिया और जिनकी अटेंडेंस ली नहीं ली, who cares? It's an institution. Because we are talking about health of democracy. We are not talking about the health of a political party. Then to substantiate your answer, you can quote the 1978 Act, जिसमें leader and deputy leader of opposition in houses. So उसका इस एक्ट का बहुत लंबा नाम है, that's why I wrote 1978 Act है। leader and deputy leaders of opposition in houses। वहां पे इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस है इनका अपोजिशन का, तो मेंशन दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने काफी डायमेंशन कवर कर लिए हैं। दिस क्वेश्चन इज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीएम। एट द एंड ऑफ द डे आपका ये होना चाहिए कि आपकी हर लाइन में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हर लाइन में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और बहुत ज्यादा, और एक आर्ग्यूमेंट पे सिर्फ 2 लाइन एंड एग्जाम्पल। 2 lines are more than enough to convey the information, convey the message, and if this example will speak louder than your 2, 3, 4, 5 lines. The example will speak much louder than what you want. Okay, और कोई अभी Sir, और it's recent also में important. It's also Yes. important, sir, that when we are discussing these issues of judiciary, executive, and this 10 schedule, that we conclude our answer with some way forward, with some good practice. Like in case of speaker, we have the British model wala practice. So or some committee report, some Supreme Court judgment. With all these issues, we have to prepare the way forward, because we cannot just leave the answer with the problem itself. Yeah, exactly. Prepare a template for communication. तो यूएस में, सॉरी यूके में कंसेप्ट है स्पीकर फॉर लाइफ, उस पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें और कमिटीज हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम्स, लेकिन कुछ कमिटीज हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी। ओके, दिनेश गोस्वामी, गुड। योगेश पढ़ रहा है। सर इसमें बोला था कि प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन रिमूव करेगा, ऐसा बोला। Okay, good. So yeah, that was a very good suggestion कि हमें we should prepare a template, क्योंकि these are the basic questions, आएंगे ही आएंगे, और तो आप उस पर टेम्पलेट अपना अच्छे से तैयार करके रखो। और कौन सा रिसेंट इश्यू चल रहे हैं? योगेश क्या पढ़ रहे हो आजकल न्यूज़पेपर में? सर वो इलेक्शन कमीशन का एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक बॉडी, मतलब एक सिलेक्शन कमेटी से सिलेक्ट करना है, ना कि डायरेक्टली गवर्नमेंट अपॉइंट करे। यस एग्जैक्टली। सो आप इसको और वाइड कर दीजिए, अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स।
क्योंकि it pertains to the appointment of ED also, appointment of permanent executives. तो इसमें ECI भी आ गया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टेटरी की भी, स्टेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दोनों, ED, ECI, ED, CBI and CVC. So there are lot many institutions, IB. तो उनका अपॉइंटमेंट, बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, दैट इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. आप बार बार टेन्योर एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्यों? आपके पास में और काबिल अफसर नहीं है. So these are the remarks of Supreme Court, which you can easily put in your answer. Remarks of Supreme Court, and you very specifically quote that Supreme Court remarked that why should appointment be extended beyond the statutory time limit. Sir, Anup this is a- Baranwal judgment case na. This one? Anup Baranwal. Right. तो आप केस लॉज को कब कोट कर दीजिए एंड राइट वट एवर सुप्रीम कोर्ट सेज. तो अनदर थिंग वाज दिस डिफेमेशन. अब यार ऐसा है, डिफेमेशन तो मैं अपनी टाइम पे भी, मैंने लगभग जितना भी एग्जाम दिया हर बार पढ़ के जाता था, बट कभी क्वेश्चन आया नहीं. आई डोंट नो कभी आएगा कि नहीं आएगा. स्टिल अब जैसे पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, तो आई कैन से दैट आ सकता है, बिकॉज दिस डिफेमेशन इज अ लो पेपर थिंग, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, नॉट अ जीएस पेपर थिंग. तो लॉ में क्या, लॉ के स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे डिफेमेशन को, और जीएस के स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे डिफेमेशन को. बट स्टिल यू शुड हैव अ थोड़ा सा बेसिक. डिफेमेशन क्या होता है? सिविल टाइप होता है, क्रिमिनल टाइप होता है. सिविल में जेल नहीं होती है, क्रिमिनल में जेल, क्रिमिनल में जेल होती है. These are the थोड़ा सा बेसिक, बाकी तो आप पढ़ेंगे. और डिफेमेशन के साथ में ही कंफ्यूज नहीं करना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इसमें भी वही होता है, सिविल है, इसमें भी जेल नहीं होता है, और इसमें जेल हो सकती है. तो ये दोनों टॉपिक भी आप डिफेमेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पढ़ लें. Anything, any other mentor would like to add with respect to recent topics? ये स्क्रीन पे तो ये कंटेंट सही दिख रहा है? यस सर. सर एक और जो इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ओवर राइट्स, फोकसिंग मोर ऑन ड्यूटीज देन राइट्स, recent topics. Okay. So recent topic with respect to fundamental rights versus fundamental duties. Yes. ये भी काफी टाइम से एटलीस्ट योर कंटेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन दिस. पता नहीं कब क्वेश्चन आ गया इसमें. एंड इसमें आप देखो 4 चीजें तैयार करके रखिए. व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज which have now become legal duty or statutory duty? बताइए, 2-3 एग्जांपल बताइए. व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज which have now become a legal duty? Respecting national flag. Okay, so under which statute? Flags and sorry, I don't remember properly. Say. Emblems Act or insult to national honor.
1970। तो जितना स्पेसिफिक आप याद रखेंगे आपका एग्जाम, आपके आंसर्स उतने अच्छे दिखेंगे, ऑब्वियसली एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। एम्बलम्स एक्ट 1950। अच्छा, एम्बलम एक्ट से याद आया, इंडिया क्या है? क्या है इंडिया? अलायंस है। इंडिया एक अलायंस है। तो keeping a name of some political party, some alliance, or your company, or your home, or your anything, house, business in the name of India, is it permissible? तो इसमें ये वाला एक्ट यूज होता है, एम्बलम्स एक्ट 1950। ट्राई टू अप्रिशिएट, अभी न्यूज में पढ़ा होगा, पार्टीज दे हैव द नेम इंडियन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग, कैन यू हियर मी ना? मेरा नेटवर्क सही है ना? Yes, sir. ओके। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग केस और है। नो, सिर्फ ये तो एंगल पॉलिटिक्स का हो गया, एक मार्केट और बिजनेसेस का एंगल है, और उसमें एक जजमेंट भी है। आप गूगल पे देखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या हुआ कि बीएससी इज दिस इज द ओल्डेस्ट एक्सचेंज ऑफ एशिया। और फिर उसके बाद में जब लिबरलाइज एलपीजी मूवमेंट आया, एलपीजी 1992, तो उसके बाद में एनएससी बना। ठीक है। एलपीजी जब आया उसी के दौरान ही अरशद मेहता स्कैम एंड ऑल दैट जो हो रहा था, तो इट वाज ए नेसेसिटी कि एक कंपटीशन दिया जाए बीएससी को। ठीक है। तो कंपटीशन में एनएससी बना, और जब एनएससी बना तो नाउ एनएससी इज वेरी मच बेटर देन दी बीएससी नाउ, बहुत अच्छा कर रहा है, और ज्यादा ट्रेडिंग एनएससी के प्लेटफॉर्म पे होती है एज कंपेयर टू बीएससी, मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। तो बीएससी ने क्या किया, केस कर दिया कि इट इज यूजिंग द नेम नेशनल, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि इट इज ए स्टेट बैंक, ड्यू टू विच people are having more confidence and trust into this exchange than our BSE. Getting the point? आपने अपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम नेशनल रख लिया, तो लोगों को लग रहा है कि ये सरकारी है और डूबेगा नहीं कभी, इस पे ट्रेडिंग करो। तो ये ऐसा केस था, इसका आप गूगल में पढ़ लीजिए। ओनली थिंग इज कि आप ये मेंशन कर सकते हैं इन योर आंसर, क्वेश्चन विल बी विद रेस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, but Emblems Act 1950 says it is with respect to anything, be it politics, be it your business, be it your company, be it your anything. You cannot keep a name India. और obviously जब इसकी बात करेंगे तो आर्टिकल 1 की बात करेंगे। So these are the key terms which you should write in your answer. ये तो मेरे को अचानक से एनएससी और बीएससी का केस याद आ गया था, which you can quote to broaden the horizon of your answer. ठीक है। सर ये कुछ डॉक्ट्रिन्स वगैरह, डॉक्ट्रिन्स ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन वगैरह, ये सब मतलब पढ़ना है क्या? ये सब है अपने सिलेबस वगैरह में, मिथ एंड सब्सटेंस वगैरह? There's a previous question on one of the doctrines, so it's a relevant topic and we should read about it. And Atish Mathur sir has in his recent Magna Carta, which is a series on GS2, in that notes for this year, he has given a detailed compilation of all the doctrines that he thinks are necessary and relevant.
So he's also given a kind of structure to go about it, and a list of all the ones that he thinks necessary with the relevant information. I'll just upload it on the group. Yogesh, you got the answer? Yes, sir. Okay then. Okay, then we can call off the session now and keep writing. And अभी आप ये भी exercise शुरू कर दीजिए, how to write 3 answers in 10 minutes. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ऐसे ही होने वाला है. स्पेसिफिकली नीटिक्स तो होगा ही. 8, 9, 10 जो है 10 मिनट ही 5-10 मिनट ही मिलते हैं 3 क्वेश्चंस को लिखने. So this is the exercise you should do. Okay then, thank you mentors. Thank you very much everyone. Sir, We can shall we meet next week. GS3 का आंसर शेयर कर सकते हैं क्या हम नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट सेशन? हाँ, okay, no problem. Like GS3 का you have to discuss all PYQs for full 1 hour or थोड़ा सा discussion. What do you say? Okay sir, we can do it. सर लास्ट 2 सेशन, इससे पहले जो 2 सेशन थे वो GS2 GS3 के PYQs डिस्कस हुए थे सर उसमें. वही GS3 का or else I'm planning to do the discussion with respect to optional paper wise. Or next week I'll try that I bring some of my other topper friends from different cadres to share something with you about the mains exam. I'll try to bring Sunil Dhanwanta, rank 22. Let's see, and others. Okay, I'll post this in the group. Okay. Okay then. Bye bye.